Good morning, everyone. This is exercise 11.1 of chapter area and perimeter. And the first question is the length and breadth of a rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter respectively. Find its area. So we know that the area of a rectangle is, suppose this is a rectangle and the length is this and the breadth is this and the area of a rectangle is L into B. So in that way we will multiply both the length and the breadth of the rectangle. So area of rectangle is L into B and the answer is 500 into 300, that is 1,50,000 meter square is the area of the rectangular piece. Now we have to find the cost of the land. मीन्स हमें अब एरिया पता है उस लैंड का, बट हमें ये नहीं पता है कि उस टोटल लैंड की कॉस्ट कितनी है. उस टोटल लैंड में हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ लैंड फॉर 1 मीटर स्क्वायर, कि सपोज दिस इज़ द लैंड एंड दिस इज़ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड. हमें इस पार्ट की, इस एरिया की पता है. तो अगर हमें पूरे की निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को उस एक से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये वैसा ही है जैसे सपोज़ आपको पता है कि सपोज़ एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपीज़ है. सो आपसे बोला जाए अगर आपको 10 टॉफ़ीज़ ख़रीदनी है या जैसे सपोज़ आपके पास कोई फ्रूट्स आपको लेने हैं, तो आपसे अगर कह दिया जाए कि 1 केजी फ्रूट की कीमत 20 रुपीज़ है, तो 10 केजी फ्रूट्स की कीमत क्या हो जाएगी, तो 10 इंटू 20 मीन्स 200 रुपीज़. वैसे ही कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया, क्योंकि लैंड को हम मीटर स्क्वायर एरिया में नापते हैं, इसीलिए कि जो लैंड गिवन है उसके 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें पता है. तो टोटल लैंड हमारी कितनी है, 1,50,000 मीटर स्क्वायर है. तो 1,50,000 मीटर स्क्वायर जो लैंड है उसकी कॉस्ट क्या होगी, तो दैट विल बी इक्वल टू 10,000 इंटू 1,50,000. व्हेन यू मल्टीप्लाई इट यू विल गेट द आंसर 1,500 lakhs rupees. Okay. Now the second question is find the area of a square park whose perimeter is 320. Means you already have given a park which is square in shape. Now we know that the perimeter means this is the perimeter of square. Means आपको ये दिया है, कितना दिया है, 320. मीन्स 4 इंटू ए की वैल्यू आपको कितनी दी है, 320 दी है. सो यू हैव टू फाइंड द एरिया. सो to find the area, firstly we will find the side of that square. To find the side of that square we will write 4 into length of the side of the park should be equal to 320. So the length of the side of the park should be 320 upon 4. Suppose if the length of the side of the park is A, you will write 4 into A is equal to 320. That means A is equal to 320 divided by 4 and A is equal to 80. Means 80 is the length of that square park. 80 is the length of that square park. Now you have to find the area of the square park. So we know that area of the square park is side into side. Side into side. We know that the side is 80. That's why we will write 80 into 80 and the answer is 6,400 मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि हमें जो पेरीमीटर दिया है दैट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ मीटर. सो वी विल राइट the area of the square is 6,400 meter square. Now the third and fourth question is in homework and the fifth question is the area of a square park is same as of a rectangular park. If the side of the square park is 60 meter and the length of rectangular park is 90 meter, find the breadth of the rectangular park. Means here you have given that the area of square park is same as rectangular. Means अगर आपके पास एक स्क्वायर पार्क एरिया है और एक रेक्टेंगुलर पार्क एरिया है तो इन दोनों का जो एरिया है वो क्या है, सेम है, वॉट एवर इट इज़. नाउ दे आर सेइंग दैट द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60. आपको स्क्वायर पार्क की एक साइड आपको दी है दैट इज गिवन इज 60 मीटर.
So if the side of a square park is given 60, then you can find the area of that park. So area of square park is equal to side square. अभी ऊपर बताया था मैंने आपको. So side square means 60 square. That means the answer is 3600 meter square. Means the area of square park is 3600 meter square. Now you have to find the area of rectangular park. So in the first line it is written that area of square park is same as the area of rectangular park. Means area of square park is 3600. That means area of rectangular park is also 3600 meter square, which is given. Now we have to find the length we have to find the breadth of the rectangular park. So we know that the area of rectangular park is equal to L into B. ये फॉर्मूला हम जानते हैं that rectangle का एरिया जो होता है that is L into B. It is already given to you 3600. That means L into B is equal to 3600. So put the value of length in the formula and find the value of breadth. So we will write 90 into breadth is equal to 3600. Now the breadth is 3600 upon 90. So the answer is 40 meters. Okay. Now moving on to the next part, it is a wire is in the shape of a rectangle. Its length is 40 centimeter and breadth is 22 centimeter. If the same wire is rebent in the shape of a square, what will be the measure of each side? Also find which shape encloses more area. So here they are giving that the length of the rectangle is 40 centimeter and the breadth of the square is 22. Now the perimeter of the rectangle will be 2 into L plus B is equal to 4 into side, because it is given that the same wire is rebent in the shape of the square. What will be the measure of each side? Means जिस वायर से, जिस लेंथ के वायर से, सपोज 10 मीटर लेंथ का वायर था, तो जिस वायर से हमने रेक्टेंगल बनाया था, सेम 10 मीटर लेंथ के वायर से हमने क्या बनाया? स्क्वायर बनाया. इसका मतलब तार की जो टोटल लेंथ है या वायर की जो टोटल लेंथ है दैट इज़ 10 मीटर. अब आप उससे रेक्टेंगल बनाएं, सर्किल बनाएं, स्क्वायर बनाएं, हेक्सागन बनाएं, कुछ भी बनाएं, सबका जो पेरीमीटर है दैट विल बी सेम. इसीलिए यहाँ पर देखिए हमने पेरीमीटर को सेम कर दिया है दोनों के. रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी एंड स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड. दैट्स वाई दे आर इक्वल, बिकॉज इसमें गिवन है कि सेम वायर से हमने दोनों चीज़ें बनाई हैं. नाउ 2 into 40 plus 22 will be equal to 4 into side. So the side of the square side is, so the side of the square is 31 centimeters. यहाँ से हमने स्क्वायर की क्या निकाली है? साइड निकाली है. Now we have to find the area of the rectangle. So the area of the rectangle is length into breadth. So 40 into 22 will be equal to 880 centimeter square. This is the area of rectangle. Now if you find the area of a square, you will write area of a square is equal to side square, and the side of the square is 31 centimeter. So you will write 31 square, 31 into 31, and the answer is 961 centimeter square. On comparing both the areas, we can see that area of the square is greater than area of 880 area of rectangle. So on that basis, square shaped wire enclosed more area. Means जब हम सेम तार से, सेम वायर से अगर स्क्वायर बनाते हैं तो वो ज़्यादा एरिया कवर करता है रैदर देन किसी रेक्टेंगल के. ठीक है, उनका पेरीमीटर सेम है बट वो शेप के अकॉर्डिंग एरिया ज़्यादा इनक्लोज करता है स्क्वायर रैदर देन ए रेक्टेंगल. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज 7th क्वेश्चन. द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 130. इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30, फाइंड इट्स लेंथ. ऑल्सो फाइंड द एरिया. इट्स वेरी सिंपल. यू नो
perimeter of the rectangle is 130 centimeter and the breadth of the rectangle is 30. Now you have to find the length. So to find the length, we will write the formula. Perimeter of rectangle is equal to 2 into L plus B, where we will put the value of perimeter on the side of perimeter, we will put the value of breadth on the side of breadth, and length is like, you can write it L or length also. Now we will solve this and we will find that the length of the perimeter is 35 centimeters. So here now we find the area of the rectangle. So area of the rectangle is length into breadth. Now we know that the length of the rectangle is 35 and the breadth of the rectangle is 30. So we will multiply both these digits and we will get 1050 centimeter square. That is the area of the given rectangle. Now the last question is, a door of length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in a wall. The length of the wall is 4.5 meter and the breadth is 3.6. Find the cost of whitewashing the wall if the rate of whitewashing the wall is 20 rupees per meter square. So जब हमसे किसी चीज़ को वाइट वॉश करने को कहा जाता है तो वाइट वॉश का क्या मतलब है? अगर हमसे वाइट वॉश कहा जाएगा तो हम दीवार पर ऐसे ही तो करेंगे, इस तरीके से। वाइट वॉश का मतलब है कि आपको उस चीज़ का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। अगर आपसे कहा जाता कि आपको इस दीवार की फेंसिंग करनी है, सपोज़ आपको इस दीवार के चारों ओर वायर लगाना है, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके दीवार पर वायर लगाना है, तब आप इसका पेरीमीटर फाइंड करके क्या फाइंड करते? पेरीमीटर। और जब आपसे वाइट वॉश करने को कहा जाएगा तब आप इसके एरिया पर वर्क करेंगे, इस तरीके से वाइट वॉश करेंगे दीवार पर। दैट मीन्स आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसका एरिया निकालना है। तो जब हम वाइट वॉश करते हैं तो हम एरिया फाइंड करते हैं उस चीज़ का, या फिर जब हम किसी चीज़ के पेरीमीटर पर वर्क करते हैं, किनारियों पर वर्क करते हैं, बाउंड्रीज़ पर वर्क करते हैं, तो हम उसका पेरीमीटर फाउंड करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर हमें वाइट वॉश करना है तो उसके लिए हम एरिया निकालेंगे, और एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। सो फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट द लेंथ ऑफ द डोर इज़ 2, ब्रेथ ऑफ द डोर इज़ 1, लेंथ ऑफ द वॉल इज़ 4.5 एंड ब्रेथ ऑफ द वॉल इज़ 3.6। अब देखिए ये दरवाज़ा जो है वो वॉल में लगा हुआ है, ठीक है, और वाइट वॉश जो है वो हम दरवाजे पे तो करेंगे नहीं, तो पहले हम वॉल का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, फिर हम डोर का एरिया निकालेंगे, एंड देन वॉल के एरिया में से डोर के एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमें वो एरिया मिल जाएगा जिस पर हमें वाइट वॉश करना है। आप अपने घर की दीवार को देखिएगा जिसमें डोर लगा है, सपोज़ आपसे कहा जाए कि आपको इस दीवार को वाइट वॉश करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको कितना पेंट लाना है या कितने में तो आप ये कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप उस दीवार का फुल दीवार का आप एरिया निकालेंगे, उसके बाद उस डोर का एरिया निकालेंगे, दीवार के एरिया में से जब डोर के एरिया को माइनस कर देंगे तो वो एरिया बचेगा जिस पर आपको वाइट वॉश करना है। दीवार का एरिया निकालने के लिए या वॉल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डोर का निकालते हैं, तो एरिया ऑफ डोर विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ, हमें डोर का लेंथ ब्रेथ दोनों पता है, तो इट विल बी 2 मीटर स्क्वायर। नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल हो जाएगा हमारा L इंटू बी, दैट इज़ 4.5 इंटू 3.6 एंड द आंसर इज 16.2 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, नाउ सो एरिया टू बी वाइट वॉश्ड, वो एरिया जिसको हमें वाइट वॉश करना है, दैट विल बी 16.2 माइनस 2, मीन्स हमने क्या किया, हमने वॉल के एरिया में से डोर के एरिया को माइनस कर दिया। व्हेन वी माइनस इट विल बिकम 14.2 मीटर स्क्वायर, मीन्स अब हमारे पास वो एरिया है जिसको हमें सिर्फ वाइट वॉश करना है, वो कितना है, 14.2 मीटर स्क्वायर। अब बात आती है वाइट वॉश की कॉस्ट की। अब वाइट वॉश करेंगे तो उसकी कुछ कॉस्ट भी आएगी, ठीक है, तो क्या आएगी वो हमें पता है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया। जैसे ये जो हमारे पास दीवार है जिसमें ये दरवाज़ा लगा था, इसको हमने माइनस कर दिया, अब इसके 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का आपका जो खर्चा है, जो कॉस्ट है, वो है 20 रुपीज़। इतने से पार्ट को वाइट वॉश करने के लिए आपको 20 रुपीज़ कॉस्ट पड़ेगा। तो इस फुल दीवार को वाइट वॉश करने के लिए आपको कितना देना पड़ेगा, तो ये जो हमने दीवार का बचा हुआ एरिया निकाला था, दैट इज़ 14.2, इसकी हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड द आंसर इज़ 284 रुपीज़
to whitewash the remaining area of the wall. Okay, thank you.